Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you about a very important question which actually came in CSIR NET November 2020 Part C. Actually, lots of students actually requested me to make a video on this question especially. This is because they find it extremely difficult to understand. I hope I can make you understand. And before we get started, if you're new to our channel, don't forget to subscribe our channel. And if you like your video, do press the like button. Now, let's get started. Now, in this particular question, they have given you two complexes, this one and the trans this. And they are asking for the number of expected electronic transitions. So, basically, at a temperature of 4 Kelvin. So basically ये अगर मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, मुझे डिटेल में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ समझाना है. Basically this is from the topic of the tetragonal distortion from the octahedral symmetry. क्या होता है कि कभी भी जब हम हाईली ऑर्डर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर मतलब परफेक्टली क्यूब या परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल या परफेक्टली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर हम कुछ लोअर सिमेट्री में मूव करते हैं तो उसकी वजह से इसका जो स्पेक्ट्रा है वो काफ़ी अलग हो जाता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है. अगर जो न्यू सिमेट्री मिला है अगर वो रिड्यूस्ड सिमेट्री है, देन व्हाट हैपन्स देन द डीजेनरेट जो ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिटेड हो जाते हैं इनटू मोर सिमेट्रिक ज्योमेट्री. ठीक है. सो अगर एक एक लेवल स्प्लिटिंग हो जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स मिलेंगे. तो अगर ज़्यादा एनर्जी लेवल्स मिलेंगे तो मोर एंड मोर ट्रांजिशंस हो जाएंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई परफेक्टली ज्योमेट्री जो है वो अगर ऐसे कोई ज्योमेट्री में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है विच इज़ ऑफ लोअर सिमेट्री, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो परफेक्ट. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, अगर कोई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अगर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है टू अ लोअर सिमेट्री D4H, तो उसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका एनर्जी लेवल्स थे वो स्प्लिटेड हो जाते हैं एंड यू गेट मोर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स. सो व्हेन यू गेट मोर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, एक्चुअली यू गेट मोर नंबर ऑफ ट्रांजिशंस. सो first they have actually asked us for the number of transition for the complex of this. They asked for, so this is very easy, I'm not elaborating this, I hope you must be knowing this. So ये काफ़ी easy है, ठीक है. तो they asked for the number of transitions in this. So obviously ये तो आप जानते हो that it is a D3 electronic configuration. So when it is a D3 electronic configuration and it is in the octahedral field, because ethylene diamine is a chelating ligand, so therefore it is in a perfectly octahedral geometry, as a result of which it will have two states F and P, where F will get splitted into A2, since it's octahedral, A2 T2G and T1G. Since here पे number of unpaired electron is equal to 3, therefore the spin multiplicity 2s plus 1 will turn out to be 2 into 3 by 2 plus 1, which is equal to 4. So spin multiplicity आपका हो जाएंगे 4. So it is completely designated like this. And जो 4p है, it will never get splitted, it will get transformed to T1G P. Clear? So आपको ट्रांजिशंस क्या मिलेंगे? So you are having 1, 2, 3, 4. So the lowest energy level is T2G. Then you have the 4A2 T2 and then 4T1G, and this is T1GF, and then you have the 4T1GP. So this is very easy, and therefore the transition will always take place from the ground state energy level, because this is the most populated state. तो यहाँ पे to the next higher energy 1, 2,
and 3. So due to 3 transitions, you will be getting 3 peaks. So therefore, in this case, the first complex that they have given you is this, and the number of electronic transition for this complex is, so you are getting 3 electronic transitions. This is very easy. There is nothing new about it. But the important is, अगर उन्होंने कहा है the next step, तो अगर आप इसे substitute करते हो and it result in the formation of trans this complex. So you get trans तो फिर इसमें आपको कितना स्प्लिटिंग होगा. हाँ, before I proceed, I would like to give you a little bit of information about the tetragonal distortion. So Z in हो या Z out हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. This is titanium Cl6 3-. You must be knowing that यहाँ पे टाइटेनियम जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे +3, henceforth it is going to have electronic configuration D1. So अगर ये D1 है, obviously it will result in the weak Jantila distortion and that is Zin. ठीक है, तो ये मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी ऑर्गल डायग्राम्स एंड Jantila distortions. यहाँ पे मुझे आप लोगों को डिस्क्राइब करना है दैट स्पेसिफिकली मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना चाहती हूँ. ठीक है, सो मैं इस चीज को अभी एलाबोरेट नहीं कर रही हूँ. ठीक है, सो ये होता है Zin. सो Zin अगर है, सो ऑब्वियसली इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएंगे. सो Zin हो या Z out हो, दोनों ही, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएंगे. सो दिस विल गोइंग टू हैव द पॉइंट ग्रुप C4 है ना. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. So this is the principal axis C4. So if you rotate with 90 degree, you will be getting the same orientation. ठीक है, so C4, you will be getting the C4 is the principal axis, and then you have C2. Obviously, this is your C2. So if you get 1 C2, you will be getting 4 C2 and 4 sigma V and sigma H. Sigma H, which is perpendicular. ये जो plane है, it is actually bisecting it into 2 equal halves, which is perpendicular to the principal axis. So you having the sigma H, and you see here you have in this, if this you consider as a plane, you have a sigma V. So अगर आपका एक भी sigma V है, तो आपको 4 sigma V बन जाएंगे, and this will result to the point group of D4H. So basically इसे हम कहते हैं tetragonal distortion. Which arises due to Jantila distortion. Now see what happens. Zin का मैंने एग्जाम्पल किया है. Zin हो या Z out हो, दोनों ही केसेस में जो आप बोल सकते हैं, Zin हो या Z out हो, दोनों ही केसेस में आप बोल सकते हो that the axial bonds are different, either shorter or longer from the equatorial bonds. ठीक है, दोनों ही केस में आप ये बात बोल सकते हो दैट इसका जो एक्सियल बॉन्ड है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड. Zin में क्या हो जाता है, दे आर शॉर्टर एंड Z out में लॉन्गर. तो उसका दोनों के लिए, Zin हो या Z out हो, दोनों के लिए जो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएंगे D4H. Now this is very interesting. ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, what happens जब आपका यहाँ पे ट्रांस बन जाते हैं. So when you get this complex,
व्हेन यू गेट दिस कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन दो लिगैंड के व्हेन वन इथिलीन डायमीन इज रिप्लेस्ड बाय टू मोनोडेंटेड लिगैंड्स, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो दैट अगर ये कॉम्प्लेक्स नियर अबाउट ऐसे बन जाएंगे, this is your ethylene diamine and this is your ethylene diamine. ठीक है, so it is clearly visible to you that इसके भी जो axial bonds है they are different from that of the equatorial bonds because the axial bonds they are substituted by the monodental ligands and this is actually bonded to the chelating ligands. So यहाँ पर भी this is somewhat got reduced to D4H symmetry. ठीक है, this somewhat got reduced to D4H symmetry. Now जब भी ऐसा लोअर सिमेट्री में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं तो पहले वो क्या था, पहले जो आपका कॉम्प्लेक्स था वो नॉट परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल था, समवट ऑक्टाहेड्रल ही था। ठीक है, तो ये इसका जो सिमेट्री था ये था ऑक्टाहेड्रल। जब इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया है, जब इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया है which resulted in the formation of the trans this complex, as a result of which इसका जो symmetry है it got transformed to its lower symmetry that is D4H. जब भी इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, इसका जो corresponding energy levels है वो splitted हो जाते हैं। तो already we have seen that chromium 3+ octahedral field में जब D3 था उसका क्या था, उसका था F है ना, और था P, 4F and 4P, और F was like the energy levels जो splitting हो रहा था वो था A2, T2 and T1, 4A2, 4T2 and 4T1G, and this got transformed into T1GP and this is T1GF. Now we all know that A means singly degenerate and A मतलब क्या होता है, A मतलब होता है singly degenerate. And T मतलब होता है triply degenerate. ठीक है, तो T मतलब हो जाता है 3 which can get splitted into 2 plus 1. So अगर ये split होता है 2 में, so 2 तो वो doubly degenerate हो जाएंगे, so 2 जो है वो बन जाएंगे E, ठीक है, और अगर plus 1 में A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। This is how a proper octahedral जो है अगर उसका symmetry change हो जाता है, तो अगर ये lower symmetry में transformed हो जाता है, that is your D4H, and as a result of which what will happen, it will get splitted. and splitting कैसा होगा, A जो है वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। triplet degenerate ये तो आप समझ सकते हो, जो triplet degenerate मतलब 3 है, 3 can get splitted into 2 plus 1, अगर जब वो 2 हो जाएंगे तो वो बन जाएगी E, अगर जब 1 हो जाएंगे वो बन जाएंगे A और B, because A and B दोनों ही designate करते हैं that they are singly degenerate. And I have given you one chart जहाँ पे transformation I have shown you, ठीक है, तो this is the transformation I have shown you. So this is your octahedral, ठीक है, and this is your D4H symmetry, ठीक है। So octahedral में जब A2 था, क्योंकि हमारे पास A2, T2 and T1 है, so we are mostly bothered about the A2, T2 and T1. So A2 जो है, जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो था, जो ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में जो A2 था वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है टू B1G, एंड T जो है मैंने ऑलरेडी कहा है T विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 2 plus 1 मतलब E plus A और B. सो अगर वो T1G है इट विल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू A2G plus EG, अगर वो T2G है इट विल गेट ट्रांसफॉर्म टू B2G एंड EG.
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई रिपीट, तो क्या होता है, कभी भी कोई ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री जो है, अगर वो जब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो उसका जो एक्सियल लिगेंड्स है और एक्सियल बॉन्ड्स जो है, दैट विल टर्न आउट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, एज इफ इट इज जस्ट लाइक द टेट्रागोनल डिस्टॉर्शंस, आइदर Z in और Z out। तो टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन का जो पॉइंट ग्रुप मैंने आप लोगों को दिखाया वो है D4H। तो जब वो D4H बन जाते हैं तब क्या होता है, स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस, स्प्लिटिंग ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप। तो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में जो उसका सिमेट्री जो था, तो उसमें क्या क्या था, हमारा A2, T2 एंड T1 है। तो A2 विल गेट स्प्लिटेड, A2 इन दिस केस विल गेट ट्रांसफॉर्म टू, A विल गेट ट्रांसफॉर्म टू B1G एंड T मतलब 3, T का मतलब हो जाए 3 विच इज इक्वल टू 1 + 2, due to 1 it is getting transformed to A2G and for 2 it is getting transformed to EG because E means doubly degenerate. In this case T2G is getting transformed to B2G and EG. So देखो वही मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ऑलरेडी क्रोमियम 3+ जो है उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स था, सो दिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ द एनर्जी लेवल of a D3 ion as a symmetry of its environment changes। तो इसका symmetry कैसे change हो जाता है, from the octahedral to tetragonal। octahedral में क्या था, OH था, tetragonal में D4H। तो वही हमने ऑलरेडी ये किया है that chromium 3+ जो था उसका corresponding जो energy levels था वो था A2, T2 and T1 and from the F and from the P it got transformed to T1GP। क्लियर। तो इसका जो A2 है इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ड्यू टू द चेंज इन सिमेट्री इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू B1G। T जो था वो E एंड B में ट्रांसवर्टेड हो, क्योंकि T मतलब 3, वो 2 + 1 में हो गया। तो इन दिस केस T2 जो है T2 E एंड B में कन्वर्टेड हो गया एंड T1 जो है, अगर ये T2 B में कन्वर्टेड होंगे तो T1 जो है वो A2 में कन्वर्टेड हो जाएंगे, E + A2। सो यू मस्ट बी नोइंग दैट both of them are having the same symmetry। ठीक है, ये भी T1G है और ये भी T1G है, लेकिन ये T1G F का है और ये T1G P का है। तो you must be knowing that दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर सकते, दे रिपेल ईच अदर। सो ये कभी भी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर सकते, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो F का स्प्लिटिंग पैटर्न होता है P का उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। तो F का आपका हुआ है EG एंड A2G, तो P का एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है, वो हो जाएंगे आपको A2G एंड EG। स्प्लिटिंग तो सेम रहेंगे क्योंकि दोनों ही T1G सेट से है, लेकिन जो F का है उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। एंड नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट अभी ट्रांजिशन होंगे तो आपको कॉरेस्पॉन्ड जो आपके टोटल जो थे यहाँ पे जो 1 2 3 4 लेवल्स थे, इट गॉट स्प्लिटेड टू 1 2 3 4 5 6 7 levels and always transition always takes place from the ground state energy level। why? because that is the most populated state। so as a result of which आपका जो ग्राउंड स्टेट है यहाँ से जो कॉरेस्पॉन्डिंग हायर एनर्जी लेवल्स है वहाँ पे ये स्प्लिटेड हो गया। so this one is your first electronic transition, this one second, this one third, this one fourth, this one fifth and this one sixth। so therefore you see that जो हमारा D4H सिमेट्री था, D4H स्पीसीज था, जो था आपका ट्रांस क्लास, तो इसका सिमेट्री हो गया था D4H, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू गॉट टोटल 6 इलेक्ट्रॉनिक transitions। so I hope you all understand my explanation। please do let me know through the comment section if you like your video and do please write
like button as well, and obviously इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे, so आंसर हो जाएंगे 3 and 6। so जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसके लिए हमने देखा है, इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होता है और इसके लिए हो जाता है 6। वाई? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री था और जब ये इसमें कन्वर्टेड हो जाता है ये बन जाता है टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन के जैसे ही बन जाता है और इसका सिमेट्री लोअर सिमेट्री D4H हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इसका जितने भी लेवल्स थे, एनर्जी लेवल्स थे, वो स्प्लिटेड हो जाते हैं। अभी ए तो स्प्लिटेड नहीं हो सकते कि ए मतलब सिंगली डिजेनरेट है ना, ए जो है वो स्प्लिटेड नहीं हो सकता है, तो ए हमेशा कन्वर्टेड ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो A2 था वो B1G में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है ना, सो A2 जो था वो B1G में, क्योंकि वो सिंगली डिजेनरेट वो ट्रांसफॉर्म्ड हो सकते हैं। एंड T जो था 3+1, 3 जो था 2+1, तो वो 2E and B या A में transform splitted हो गया। So due to the splitting, you got a lot of energy levels. More the energy levels, more the transitions. That is why you got 6 electronic transitions. So thank you for watching our video. Thank you.